fourth one, which is charcoal. And if we use it responsibly and use technology, it can also be an environmentally sound solution to our energy crisis. And the fifth one, which we need to pay more attention to, is nuclear. We tend to forget that our iron brother China has partnered with us in putting up two of the most modern nuclear energy plants in the country, the K2 and K3 nuclear plants in Karachi, which are providing 2200 megawatts of base load to us. And in fact, one of the crises that came, the load shedding crisis back in June, was that K2 was due for its refueling and had to be shut down. And so we are suddenly 1100 megawatts short. So nuclear is an important part of our energy mix. And being a long-term project, and as well as a project that doesn't require constant refueling, it has very recently been termed now a renewable source of energy. So these are the five. I repeat, it's hydel, it's wind, it's solar, it's charcoal, and nuclear. And that's it. So future energy landscape of Pakistan will be based upon these five sources. So that's our policy. We have to rely on our domestic sources. A lot of countries are making the same choice, having faced with the similar problems that they do. And in this, all these five sources of energy, of course, China is the most crucial and valuable partner. Back in December '78, Deng Xiaoping made a famous speech, and let me quote from it directly, because Deng Xiaoping was trying to change China's direction. Yes. From their very heavily doctrinal communism and socialism. And they had tried everything. They had gone through tremendous difficulties in 60s and 50s, and even in 70s. So what did he say? He said, emancipate the mind, seek truth from facts, and unite as one in looking to the future. Ladies and gentlemen, Pakistan is now find itself in we just completed our 75 years of existence and independence. We face a similar reckoning that China's leaders had the foresight to face back in late 70s. What is the reckoning? The reckoning is, again, quoting Deng Xiaoping, he said 4 modernizations, very famous 4 modernizations: agriculture, industry, defense, science, and technology. Which we all know we need to. I mean, our agriculture is practically in the 19th century. It has to be modernized. But, you know, since I'm dealing with energy, even in energy, the large number of policies that Mr. Zubairi very ably laid out, and they are part of this report, are governance systems. And let me just admit, first of all, the way we put up energy plants has to be modernized. The way we deal with our investors has to be modernized. These are my modernizations. There was Deng's modernization. My modernization is that PPIB has to be modernized, whose MD is sitting here. And Alternative Energy Development Board has to be modernized. Well, the Ministry of Energy has to be modernized. I hope I have to be modernized also, because I have to learn a great deal. I've had to learn a great deal in the last 4 months since
Prime Minister Shehbaz Sharif hung this albatross on my neck, and I have not called it a noose, so there's a lesser degree of pain, but yes. वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अवाम को सस्ती और माहौल दोस्त तवानाई की फराहमी हमारी अवलीन तरजीह है। तवानाई का शोबा पाकिस्तान में इस वक्त बहुत अहमियत का हामिल है। फर्नेस ऑयल से बिजली महंगी पैदा हो रही है। इमरान न्याजी पाकिस्तान को कमजोर करने के दर पे है। आलमी सतह के मारूफ जरीदे इकोनॉमिस्ट ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर दी। जरीदे की 2 खबरों ने इमरान न्याजी से मुतालिक हमारी बातों की तस्दीक की। इमरान न्याजी ने IMF से मुआहदे की धज्जियां बिखेरी और सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस तबाहकुन अमल का फायदा उठा रहा है वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। मुतासिरीन सैलाब की इमदादी अशिया पर टैक्स इस्तिस्ना की तफसील जारी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर काबीना ने 30 अगस्त को टैक्स इस्तिस्ना की मंजूरी दी थी। ज़ाब्ते के तहत फलाही और मुखय्यर हज़रात को NDMA का सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। सैलाब मुतासरीन की बहाली का मिशन अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कल पाकिस्तान आएंगे। सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। आलमी बरादरी से बड़े पैमाने पर इमदाद की अपील करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वजारत दिफा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर समीर बिन अब्दुल अजीज अतबीब की मुलाकात। मामी दिलचस्पी के उमूर, 2 तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात का जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा। शहीद कैप्टन अब्दुल वली वजीर के अहल खाना से मुलाकात। शहीद के अहल खाना को खराज तहसीन पेश। कैडेट कॉलेज वाना के मरकजी ऑडिटोरियम को अब्दुल वली वजीर शहीद के नाम से मंसूब कर दिया गया। ISPR। यौम बहरिया हीरोज को खिराज अकीदत और शोहदा की कुर्बानी और जज्बे को सराहने का दिन। हमारे हीरोज ने 1965 की जंग में हौसले, हिम्मत और बहादुरी का मुजाहिरा किया। आज सितंबर के दिन पाक बहरिया की तारीख में सुनहरे बाब के तौर पर रकम है। ये सरफरोशों की लाजवाल कुर्बानी और जज्बों की याद दिलाता है। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी का पैगाम। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल। ठट्ठा, सजावल और दादू के कई देहात ज़ेर-ए-आब। मंचर झील में कट लगाने के बावजूद पानी की सतह में इजाफा। सांगर, टंडुआदम और नवाबशाह समेत मुख्तलिफ इलाकों में खैमा बस्तियाँ कायम। खाने पीने समेत ज़रूरी अशिया की फरहमी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान के ताज़ा आदाद और शुमार जारी। अब तक 1355 अफराद जाँ बहक, 12,722 जख्मी हुए। 17,12,514 से जायद मकानात का नुकसान। 7,53,187 मवेशी सैलाब में बह गए। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज का आज से ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम का आगाज। आज पंजाब असम्बली के हल्का 241 चिश्तिया में जलसा आम से खिताब करेंगी। अहम मकामी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगी। यू टर्न का चैंपियन इमरान न्याजी अपनी सियासी पस्ती के उरूज पर है। सुबह एक बयान, शाम को इसी की तरदीद, रात को एक तो सुबह को इसकी माफी। फितना खान पाकिस्तान की सलामती के लिए एक मुस्तकिल खतरा है। ऐसे फितने को कौम मुस्तरद कर चुकी। पेशावर के बाद अब चिश्तियां से भी रुस्वा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ट्वीट।
आज़रबाईजान में बैनुल-अक़वामी असलहे की दिफाई नुमाइश। बाकू में जारी नुमाइश में पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशन, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री समेत 4 बड़ी कंपनियां शरीक। आज़रबाईजान के सदर का पाकिस्तानी स्टॉल्स का दौरा, दिफाई साजो सामान में इजहार दिलचस्पी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख्वानदगी का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद ख्वानदगी की अहमियत को जाहिर करना है। दिन की मुनासबत से मुल्क भर में सेमिनार और मुज़ाकरे होंगे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 174 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.22 रही। वायरस से मुतासरा 119 अफराद की हालत तशवीशनाक। गुज़श्ता रोज 14,208 टेस्ट किए गए। कौमी इदारा सेहत। अमरीका की पाकिस्तान को $45 करोड़ के मुआहिदे की मंजूरी। रकम F-16 तैयारों की देखभाल के लिए आलात और सर्विसेज की मद में दी जाएगी। मुआहिदे से दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में मदद मिलेगी। अमरीकी वजारत दिफा। आलमी मंडी में खाम तेल की कदर में $4 फी बैरल से ज्यादा की कमी। अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत $82.68 फी बैरल हो गई। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ये खाम तेल की कम तरीन कीमत है, जिसकी वजह से आलमी सतह पर कसाद बाजारी का खौफ है। अल्बानिया ने ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। ईरानी सिफारत खाने के अमले को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। यह फैसला जुलाई में साइबर हमले की तहकीकात के बाद उठाया गया है। अल्बानिया के वजीर आजम एडी रामा का वीडियो बयान। वियतनाम की बार में आग लगने से 32 अफराद हलाक, 11 जख्मी। ये बार होचीमन शहर के करीब एक रिहायशी इलाके में मौजूद इमारत की दूसरी मंजिल पर वाक़ था। आग लगने के बाद इमारत में धुआं भर गया। इमरजेंसी एग्जिट न होने के बायस हलाकतें ज्यादा हुई। हुक्काम। भारतीय रियासत बिहार में दरिया का पानी खुश्क होने से छुपी मस्जिद उभर आई। बिहार के जिला नवादा में वाक़ई मस्जिद 30 बरस कबल डैम बनने की वजह से ज़ेरे आब आ गई थी। नूरी मस्जिद फन तामीर के एतबार से 600 साल कदीम लगती है, जो 30 साल ज़ेरे आब रहने के बावजूद जूं की तूं है। एशिया कप का सुपर 4 मरहला, पाकिस्तान की अफगानिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त। नसीम शाह के आखिरी ओवर में 2 छक्कों ने मैच का पांसा ही पलट दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 130 रन का हदफ आखिरी ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। एशिया कप के तमाम मुकाबले PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। दिफाई चैंपियन भारत और अफगानिस्तान एशिया कप से बाहर। फाइनल इतवार को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होगा। भारत और अफगानिस्तान की टीमें आज के मैच में सिर्फ प्रैक्टिस ही कर पाएंगी। दोनों टीमों के दरमियान मैच शाम 7 बजे खेला जाएगा। मैच PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच सनसनी खेज अंदाज में खत्म। तल्ख यादें छोड़ गया। दिल बर्दाश्ता अफगान शायकीन आपे से बाहर। पाकिस्तानी शायकीन पर जुमले कसने के साथ हमला आवर भी हुए। स्टेडियम की कुर्सियां उखाड़कर पाकिस्तानी टीम के सपोर्टर्स को मारना शुरू कर दी। शारजा हुकाम का स्टेडियम में हंगामा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। स्टेडियम और शायकीन को नुकसान पहुंचाने वालों को मॉनिटर कर रहे हैं। नसीम शाह के छक्कों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियांदाद की याद ताज़ा कर दी। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की रवि शास्त्री से गुफ्तगू। जावेद मियांदाद के छक्कों की बात करके शास्त्री के पुराने जख्म ताज़ा कर दिए। मियांदाद ने 1986 में शारजाह में भारत के खिलाफ तारीखी छक्का मारकर पाकिस्तान को फतह दिलाई थी। सोशल मीडिया पे वीडियोस चली वो मैं जवाब नहीं दे सका और इन्होंने बात की कि जी इमदाद कहाँ जा रही है। इमदाद 100